I, good evening. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଦ୍ରୁ ଶଙ୍ଖ मध्ये ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାଗ୍ରତେନ भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानां सारमेशं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्टा आनंद कंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवादिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण रे कोटि कोटि दंडवत। गुड इवनिंग। आज 96तम आभासी आलोचना चक्र एई परिप्रेक्षी रे आम सहित गोटे बिंदु रे जोग देइथिबा समस्त प्रतिभागी माननकु सुधीवृदंकु नमस्कार जणाउछि एवं आजिर ए जो सुंदर कार्यक्रम रहिछि से लागि समस्तंकु धन्यवाद जणाउछि। आज समस्त आम गहन रे उपस्थित अछंती। आई विश ऑल आवर फ्रेंड्स हैप्पी ईद, वंडरफुल ईद, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। As all of you know, today we are having the program on the topic live webinar. It's a time to comment, forgive, and reflect. Eid Mubarak. So it's an initiative to inculcate spiritual value on youth. ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦବା। କଣ ଚମକେଇ ଦବା, କିପରି ଚମକେଇ ଦବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, I take this opportunity to introduce them. First of all, I want to convey my heartfelt gratitude to all the guests, starting from our chief guest, Mr. Muna Khan, our Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. He is also advisor to the government of Odisha Minority Affairs, and he is associated with many organizations, and particularly he is a superstar in Oriya film, Cine film. So everybody was anxious to see. So I'm also very happy to get him because of his busy schedule. He has find some time for us. Then we have got chief speaker. He is Revered Ashu Kabir, the poet, Dr. Muhammad Shama, the state resource person, School and Mass Department of School and Mass Education, Government of Orissa. Then we are having a special invitee, Mrs. Salima Parveen. She is the Assistant Commissioner of Excursion Guide, Jammu and Kashmir, UT. So I'm very happy to get all of you, and I invite and welcome all of you to this Google Board. And on behalf of Rover Ranger Unity of Mahasi College, we are celebrating day by day, and today is the 96th National Webinar, and where I'm very much happy and very much overwhelmed to introduce you once again, Mr. Muna Khan, the Rajya Sabha member, also the very young and energetic member of our Bhubaneswar Development Corporation. Whatever work is being done, you will find Munabhai is there, because he always accompanied with the minority class, and he wants to develop them in such a way that there will be no quarrel, there will be a peaceful environment in Odisha. Thank you very much. Being a person from Nabarangpur, he is very, very involved in all the programs, starting from birthday, starting from marriage anniversary, starting from any function in the society, you will find always there Muna Bhai, very, very famous actor in Odisha. I want to inform our chief guest, sir. We are having different states. They will soon join with us. Friends from Jharkhand, Bihar. We are having friends from Maharashtra, Madhya Pradesh, then Jammu and Kashmir, and there are also some
representatives from media people like Shanu Kumar, the journalist from Bihar, Lala Ananta Kumar Singh from Puri, Turtianan, and there are so many friends from media line. So once again, I welcome all of you to this Google board. Now it's time to welcome our guest with a small bouquet. One our friends from Assam, Mrs. Vijay Deka, she joined. Thank you, Vijay ma'am. I want to welcome our guest with virtually with a small token of love. Thank you, sir. And we are having friends, special invitee Salima ma'am. I want to present a small flower to Salima ma'am on this virtual mode. Thank you, madam. Salima ji, it's Thank for you, madam. you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Then we are having friends, Dr. Muhammad Osama. Uh, may I request Osama ji, please acknowledge the flower, please. It's a gift for you. Osama Thank you, ji, ma'am. is it visible? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Yes, Okay. thank you. Thank you so much. Sure, I won't take much of your time because when Munabai is here, we'll listen from him and also we'll listen from Salima ji, our guest from all the way Jammu and Kashmir to join over here. So Eid Mubarak is a traditional Muslim greetings reserved for youth on the festival like Eid al-Fitr and Eid al-Juha. And Mubarak means, as all of you know, that blessed. Muslim wishes each other, I mean, to the all the community members, Eid Mubarak. That means after performing the Eid prayer, they start doing and welcoming their friends from the heart of core of their heart. So Eid al-Fitr is celebrated by the Muslim community worldwide. So it's a 3-day celebration, we know, that takes place in the holy month of Ramadan. It also known as festival of breaking the fast. We will now listen from our distinguished guests about the performance of this holy function. So people come together, offer it prayer. So in the early morning, they break their fast, they express gratitude to each other and enjoy eating so many things. So I'm so happy. Now I'll request Osama ji, being the chief speaker. I know you will first speak, then Salima ji, and then we'll listen continuously from Munabai. So now I'll request Osama ji, please. The floor is with you. Over to you, Osama ji, Dr. Osama. Uh, Thank you all for this webinar. Uh, आज के इस ईद उल फितर के मौके पर मैं सभी को बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। आज इसी के साथ साथ अक्षय तृतीया, पवित्र अक्षय तृतीया और भगवान बसवा जी की जयंती है और भगवान परशुराम जी की भी Parshuram ji. जयंती है। Yeah. ऐसा पवित्र दिन बहुत कम देखने को मिलता है। मैं सभी विश्ववासी को बधाई देता हूँ ईद के मौके पर। ईद उल फितर जो है एक शांति, मैत्री और भाईचारा का दिन है। और आज मैं गर्व अनुभव करता हूँ, डॉक्टर नमिता जी को बधाई देता हूँ खासकर कि कोरोना काल में उन्होंने एक महिला होने के नाते, एक लेडी होने के नाते 96 वेबिनार कर पाई, जो हम भी नहीं कर पाए। तो उनके लिए थोड़ा क्लैप होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, श्रीमती नलिनी प्रभा जी जो उनको शक्ति देती हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ आज के मौके पर। ये ईद उल फितर का दूसरा मीनिंग जॉय है, आनंद है। ये मन का आनंद होना चाहिए।
पूरे विश्व में आज हर मुस्लिम जो इस्लाम को कबूल किया है ईमान के तौर पर, वो आज ईद मना रहा है। और ईद जो मनाते हैं उसका मेन मकसद है ज़कात देना, जो उसके पहले होना चाहिए। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर हर मुस्लिम पूरी दुनिया का अगर वो सही ज़कात दे, ज़कात बोले तो इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स, अमंग द 5 पिलर्स। 2.5% वो दान करेगा, जो नीडी पर्सन है उनको देगा। अगर ऐसा करे तो शायद पूरी दुनिया में गरीबी नहीं रहेगी, मेरे ओपिनियन से। हर इनकम जितना है उसका 2.5 सही अगर कोई डोनेट करे गरीबों पर, तो ये मकसद होना चाहिए। और ये जो रमज़ान है, ये रमज़ान भूखा रहने का मंथ नहीं है, ये एक्चुअल में अपने को प्यूरिफिकेशन का मंथ है। इस्लामिक कैलेंडर का 9th मंथ बोला जाता है। ये आज जो शवाल का 1 तारीख है, जिसको हम ईद उल फित्र के नाम से मनाते हैं, हम 30 डेज 30 दिन का रोज़ा रखे हैं, फास्टिंग किए हैं। और सही प्यूरिफिकेशन बॉडी का साल में एक बार होना चाहिए। जैसे साइकिल को आप ऑयलिंग करते हैं, इस तरह बॉडी का एक ऑयलिंग ज़रूरी है। तो हम जो इस्लाम में बहुत चीज़ मनाते हैं, ये पूरा भाईचारा का चीज़ होता है। ये टोटल जो मैं इस्लाम का सही मेरे मत से ISLAM इस्लाम, आई शैल लव ऑल मैनकाइंड। मैं सभी जो भी हैं दुनिया में, सब ऑलमाइटी के बंदे हैं, मैं सभी को प्यार करूंगा, ये मकसद होना चाहिए। आई शैल लव ऑल मैनकाइंड। और अगर उड़िया में देखें, हिंदू हिंसा दूरे, कभी हिंसा ना हो, हिंसा को जो दूर करे वो हिंदू है मेरे ख्याल में। तो इसी तरह आज का जो त्यौहार है, हमारे चीफ गेस्ट जनाब ज़ीबुल्लाह खान साहब हैं, जो MP हैं राज्यसभा के, इनको समझता हूँ। और आज का जो है बाकी गेस्ट जो हैं, सलीमा जी है जम्मू कश्मीर से, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। सभी कैसे एक बने, जैसे आप गीता में देख लीजिए लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरी दुनिया एक परिवार है, सबका मकसद एक है। और मैं 2-3 शेर से आपको बताता हूँ। रही नगुफ्ता मेरे दिल में दास्तान मेरी, रही नगुफ्ता मेरे दिल में दास्तान मेरी, न इस दयार में समझा कोई जबान मेरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एकताई की बात, समझौते की बात, डर को दूर रखने की बात, आतंक को दूर रखने की बात, ये समझना चाहिए हर एक इंसान को पूरी दुनिया में। समझना चाहिए कि आज हम इंसान बनकर पैदा हुए हैं, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, और मनुष्य का कर्तव्य, ये श्रेष्ठ जीव है, इसका पहला कर्तव्य है, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो भी बनाया है उसको प्यार करे और सही ढंग से अपना जिंदगी बिताए, जीवन बिताए, ताकि दूसरों से अलग हो। हम जानवर से अलग हैं, पशु से, इसीलिए हमारा ज्ञान है। अगर हम ज्ञान को लेकर अज्ञान का काम करें, समाज को खराब करें, तो हमसे और कोई पशु, हम जैसे पशु से और कोई पशु ज्यादा असर नहीं होगा। तो मैं समाज की बात करता चलो। समाज, समाज को हम अगर डिवाइड करें 3 लेटर में, समझिए, आज क्या हो रहा है उसको समझ के चलिए, मानिए, मानकर चलिए, जो भी नियम आ रहे हैं हमारे दौर में, मानकर चलना है, सबको एक्सेप्ट करना है। और तीसरा चीज है, जुड़िए, सबके साथ जुड़ने से एक काम होगा, एक काम करने से नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। 3 चीज मैं आपको कहता चलूं आज के पवित्र दिन में, कि अगर हम लाइफ में 3 चीज करेंगे तो कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। आप देख लीजिए 2010 के बाद ये जो वर्ल्ड का रोटेशन, ये लगभग डबल हो गया। जो रोटेशन था 7 हॉर्स, ये लगभग 14 हॉर्स हो गया।
इसका मतलब है पृथ्वी जिस गति से चल रही है, हमें क्या दौड़ना पड़ेगा? नहीं, हमें 3 चीज करना है। पूरे मानव जाति को मैं अनुरोध करता हूं आज के दिन पर कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ना डायबिटिक होगा, ना शुगर होगा, ना डिप्रेशन होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ दवाई करना नहीं है, दौड़ भाग करना भी नहीं है। मैं विनती करता हूं सभी से, आज पहला काम है, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को प्यार करूंगा। आप खुद को पूछिए, आज तक आपने खुद को कभी प्यार नहीं किया। आप दूसरों को प्यार करते हैं, खुद को डिप्रेशन में लाते हैं। अगर दूसरों को इम्प्रेस करने में आपको डिप्रेशन होता है ज्यादा, आप दूसरों को इम्प्रेस मत कीजिए। इम्प्रेशन से डिप्रेशन होता है। तो आप अपनी जगह रहिए, दूसरे आपको प्यार करेंगे। पर पहला बात है, आप खुद को प्यार करें। आई लव माई सेल्फ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବି, and I love others, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବି unconditionally, ନିଃସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଭାଇ ଅଛି, ସେ ମୋର ପड़ोसी ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ। सो मैं खुद को प्यार करूंगा, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव अदर्स अनकंडीशनली। कोई कंडीशन नहीं होगा, निःशर्त। सब भगवान के बंदे हैं, सब भक्त हैं ईश्वर के, हमें सबसे प्यार करना है। और दूसरा मंत्र है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। हम जिंदगी में खुद को कभी सम्मान नहीं दिया। हम औरों को सम्मान देते हैं, पर खुद को सम्मान देना सीखें। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट अदर्स। मैं खुद को सम्मान दूंगा और दूसरों को भी सम्मान दूंगा जो जिस स्तर में है। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रहे। ये 2 चीज याद रहे, आई लव माई सेल्फ, आई लव अदर्स अनकंडीशनली, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट अदर्स अनकंडीशनल। और तीसरी बात, सबसे बेहतरीन चीज है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। भगवान मुझे जिस स्तर में रखा है, 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, मेहनत कर खाऊंगा, एक्सेप्ट करूंगा। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट अदर्स। दूसरे जो भी स्तर में कोई हैं, मैं उनको भी ग्रहण करूंगा। मु निजो को ग्रहण करिबी जो स्तर रे भगवान रखिछंती, एवं अन्य मानों को भी ग्रहण करिबी अनकंडीशनली, निःशर्त। तो ऐसा अगर 3 चीज करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप लाइफ में कभी कोई बीमारी, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, दवाई खाना भी नहीं पड़ेगा। आज के इस पवित्र मौके पर मैं समस्त भाई ओडिशावासी को 3टी जिनिस निवेदन करुछि, जीवन रे 3टी जिनिस करंतु, समस्त मिसिक आगेबा। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद, ईद मुबारक सभी को। अक्षय तृतीया और भगवान बसवा जी की जयंती पर, भगवान परशुराम जी की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई। Very nice, sir. Very nice. Very nice. Thank मुझे you. कहते बणी Yes, yes, sir. Now, we'll listen from our chief guest and Honorable MP Dajisava, because he has got some other assignment and he has to leave the meeting. So may I request Muna Khan sir to please start your speech. Over to Muna bhai. अस्सलाम वालेकुम, समस्तों को नमस्कार। Walaikum आज salam. मैं धन्यवाद दूंगा बहन नमिता का, जो हम लोग सबको यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। और खास करके हम लोग तो सब तो इनडायरेक्ट हो गया है, आज वो फूल भी भेज दी इसके अंदर से, तो मुझे पता नहीं आप लोगों के पास फूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन हेलो, Yes sir, we are able to listen sir. हाँ हाँ Yeah. तो आप लोगों के पास फूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे पास एक अंदर से फूल निकला मोबाइल से ही अंदर। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम जितने भी यहाँ पर हैं सबको मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ बहन नमिता की तरफ से, और खास करके सलीमा मैडम जो हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। आप सबसे Thank you, sir. खूबसूरत राज्य में रहती हैं, हमारे देश का सबसे खूबसूरत राज्य है वो। Yes, sir.
इसीलिए आपको भी ईद मुबारक मेरे तरफ से, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी सर मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को भी एक मौका मिला था, अभी हम लोग गए थे जम्मू एंड कश्मीर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, और इतना खूबसूरत जगह देखने का मौका मुझे मिला। आप ऐसी खूबसूरत जगह में रहने वाली हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छा है, आप वहाँ रहती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज के इस पवित्र दिन में खास करके हम लोग उड़ीसा में जैसा कि भाईचारा से रहते हैं हम लोग, उड़ीसा के लोग एक दूसरे के अलग अलग फेस्टिवल्स में हम लोग भाग लेते हैं, सबका एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये हमारा उड़ीसा का राज्य जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का संस्कृति वाला राज्य है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त अगर कोई है तो एक मुसलमान थे जिनका नाम था साल बेग। तो वो भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनका नियम बहुत है, मंदिर के अंदर किसी गैर हिंदू को अंदर जाने का इजाजत नहीं है, बहुत परंपरा है, बहुत पुराना। लेकिन भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़ा भक्त जो है वो एक मुसलमान है, ये सबसे बड़ी बात। तो बहुत पुराने जमाने से कहानियां हैं कि जब ये बात को कोई मानते नहीं थे, तो जब भगवान जगन्नाथ साल में एक बार रथ में निकलते थे, रथ यात्रा उनका होता है, आजकल भी होता है, तो उनका रथ वहीं पर उनके साल बेग जो है, जिनका कबर है वो रास्ते में, उनका कब्रस्तान है, वहीं पर रथ रुक जाता है, उससे आगे रथ बढ़ता नहीं। तो जब तक भगवान जगन्नाथ की इच्छा नहीं होता, वो साल बेग के कबर के पास उनका रथ नहीं रुकता, तब वो आगे कभी नहीं बढ़ते, भले जितने हजार लोग रथ को खींच दें, रथ आगे कभी नहीं बढ़ता। ये बहुत बड़ी बात है। तो वैसे भाईचारा वाला राज्य में हम लोग रहते हैं उड़ीसा में। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि पूरा रमजान का महीना एक पाक महीना, हम लोग रोजा रखते हैं, 30 रोजा। अल्लाह ताला हमको रोजा रखने का तौफीक दिया, ताकत दिया, तब हम लोग 30 रोजा कंप्लीट कर सके। और उसके बाद आज ईद मना रहे हैं। आज बहुत साल के बाद ऐसा हुआ कि एक ही दिन में सारा देश में ईद मना रहे हैं। बहुत साल के बाद ऐसा हुआ, नहीं तो एक दिन आगे पीछे हो जाता है चांद के झमेले। कहीं चांद दिख गया तो बोलते हैं हमारा दिख गया, हम ईद मनाएंगे। कोई बोलते हैं हम लोग को दिखा नहीं, आज नहीं मनाएंगे, कल मनाएंगे। ये प्रॉब्लम हर वक्त रहता था हमारा। लेकिन काफी साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि आज सारा इंडिया में शायद आज ईद एक साथ सब मना रहे हैं, क्योंकि परसों चांद कहीं नहीं दिखा था, 29वां ईद नहीं हो सका, इसीलिए आज सब ईद मना रहे हैं। और आप लोग जानते हैं रमजान के महीने में हम लोग अभी जो बोल रहे थे, हमारे से पहले वक्ता हमको बोल रहे थे हमारे ओसामा जी, इसके बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे कौम के बारे में, कि कैसा इस्लाम में हम लोग 2.5% हम लोग देते हैं, अपना जो कमाई का 2.5% हम लोग देते हैं। ये सब बता रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ साल 2-4 साल पहले एक नोबेल प्राइज भी कोई जीते थे रिसर्च करके कैंसर के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि साल में अगर कोई 24 दिन अगर फास्टिंग रखे, 24 दिन, तो उसे कैंसर अटैक नहीं कर सकता। उसका मतलब हम लोग को तो 30 दिन अलाउ किया गया है। तो मैं सोचता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब रोजा शुरू किया गया, तो शायद इसको भी उसी के साथ कनेक्ट किया गया था कि रोजा अगर 30 दिन रखोगे तो वो बीमारी नहीं आएगा जो बीमारी के से बहुत से लोगों की जान चली जाती है। शायद अल्लाह ताला उस जमाने में इस टाइप का हमको दिखाए थे दुनिया वालों को कि रोजा रखने से ये बीमारी से दूर रह सकते हो। तो क्योंकि वो जब रिसर्च करके उनको वो पाए कि 24 दिन अगर कोई साल में रोजा रखेगा या फास्टिंग करेगा, खाली पेट रहेगा, तो उसको कैंसर नहीं हो सकता। तो साइंस के साथ भी कनेक्टेड है। चलो अच्छी बात है, कोई ये नहीं। लेकिन आज एक राज्यसभा सदस्य के हिसाब से मैं उड़ीसा से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। मैं 2020 में ही गया था पार्लियामेंट। 2020 से 2 साल तो हमारा वैसे ही कोरोना में निकल गया,
तो मैं MP बन के 2 साल घर में बैठा, मेरे को तो बड़े अजीब लग रहा था, क्योंकि काफी साल से पार्लियामेंट जाने का हमारा ख्वाहिश था और अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश पूरा किया, लेकिन मेरे को पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए बहुत महीना लग गया और पार्लियामेंट तो ठीक से होता भी नहीं था, जैसे कि आप लोग जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी मुसीबत से ऊपर वाला धीरे धीरे सारे दुनिया के लोगों को बचाया है। आज कोरोना से काफी हद तक राहत हमको सबको मिला है। तो आज बहन नमिता ये बहुत ही अच्छी महिला है, बहुत सालों से मैं उन्हें जानता हूँ। वो हर वक्त हंसते रहती है, सुख में दुख में, वो कभी दुख में नहीं रहती, वो हर वक्त हंसते रहती है। इसलिए उससे मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो आज हम लोग सबको इकट्ठा कर पाई, हम लोग एक दूसरे से बात कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस मुबारक दिन में आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस देश में, भारतवर्ष में, हम लोग सब भाईचारा में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में रहेंगे। जैसा कि आज हमारे हिंदू भाई का कोई पर्व हुआ तो हम लोग उनके पर्व में जाते हैं, उन लोग के घर में जो जो हमारे उड़ीसा में कहावत है पिठा पना बोलते हैं, जो मिठाई उठाई बनता है घर में जो बनता है, वो सब हम लोग उनके यहाँ खुशी से खाते हैं। आज हमारा ईद है, मेरे बहुत से हिंदू भाई दोस्त भी आए थे, सबको इंतजार रहता है कि हमारा ईद कब हो और उन लोग बिरयानी कब खाए। तो ये हमारा भाईचारा का देश है, इस देश में हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का योगदान सब दें और ऐसे अच्छे मौके पर, ऐसे खास करके हमारे उड़ीसा में आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है। आज के दिन उड़ीसा में खेत में धान का बुआई किया जाता है, माने बीज डाला जाता है। आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है कि आज के दिन अगर धान खेत में डाला जाए तो फसल अच्छा होगा। ये बहुत जमाने से चले आया है। वो पर्व आज पड़ गया एक साथ, अक्षय तृतीया और हमारा रमजान का ईद पड़ गया, ईद उल फितर पड़ गया। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सब चैन और अमन के साथ सारे देश के लोग रहें, एक दूसरे का हाथ बटाएं और हमारे देश को आगे ले जाने में सबका योगदान, सबका सहयोग बहुत ही बहुत जरूरत है। फिर से मैं बहन नमिता को धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज ऐसा प्रोग्राम में हम सबको यहाँ पर इकट्ठा की और एक दूसरे को देखने, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे का दिल की बात कहने का मौका हमें मिला। इसलिए मेरे बहन नमिता को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं थोड़ा देर रहूंगा आप लोगों के साथ, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मेरा एक दूसरा प्रोग्राम है, इनॉग्रल फंक्शन कुछ है भुवनेश्वर में, मैं थोड़ा देर के बाद निकलूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अभी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, नमस्कार। Thank you so much, Munna bhai. With Ramjan said to begin later in the month of April, I would like to inform you that in a very precise manner, he requested all the friends of Muslim community not to go outside during the COVID, that global COVID pandemic was going on. So you can't believe, माने उनका जो बात ऐसे ही बोलते हैं तो सारा कम्युनिटी मानते हैं उनको, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी उनको बहुत पसंद करते हैं और 40 साल तक वो सब मुख्यमंत्री जी के साथ इतना क्लोजली एसोसिएटेड and he used to help everyone, every citizen. Whenever anybody attempt to request him for any purpose, he is the first person who come out to help without any condition. Yes, I am with you. That is the main reason for which I never call sir or anything, and spontaneously from the core of my heart, it's coming out, Munna bhai. And really, he is Munna bhai. वो मेरे को देख के ही शायद फिल्म बना था मुन्ना भाई MBBS। Yes, of course. बहुत खुशी की बात है, हमारा एक पेपर सबसे पुराने वाले पेपर है, न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर संवाद, that has been given a wide coverage for the appeal of our Munna bhai, that is during the Ramjan, when it starts from the beginning of 24th April. He appealed to
the people of the minority community to support the state government in its fight against the global COVID-19 pandemic and observed the festival at their respective homes without stepping outside during the lockdown. And through video message also, because he is being an actor, so he turned to a political portion later on. But he wishes all the people of minority community of the eve of Ramjan, which will begin on April 24th, already started, and he requested them not to step out of their respective houses under any circumstances. So, and don't go for reading namaz at mosque under iftar party, and don't go anywhere because he was afraid of their health. That is the most important part. That means how much care he has for not only for the community, this minority community, but also the youth as a whole. So in almost all the local colleges is very famous. Nobody knows the name of Mujibullah Khan. Everybody knows Munna Bhai. So I'm very happy. And here also we are having one of the senior most reader in Hindi, Dr. Pramodini Sahu ma'am from Imarti Devi College. She will propose a vote of thanks after Salima ji will speak. So I also welcome Pramodini ma'am because it is a virtual mode, so I am not able to see all of them. And I found just now she is there. So now Munna Bhai, only 10 to 15 minutes will wind up. So please be with us. And now I request Salima ji. Yes, one of my friend. She is the Assistant State Commissioner in Bharat Scouts and Guides Jammu and Kashmir, and she is associated with me since long, being a trainer. And she is also attended all my webinars, and she is the first. And also one of the another friend, Mustafa ji. Namaste, Mustafa ji. Ruma ji also there, I think. And many friends, Sambad Setu, one of the journalists also, he is there. So I'm happy that all the friends from Jammu and Kashmir were there. So I request Salima ji, please speak few words. Yes. Over to you, Salima ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaskar. केम छो, सत श्री अकाल, ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। मुझे बड़ी खुशी हुई आज नम्रता मैडम कितने साल 2 सालों से चलाते आ रही है। बहुत खुशी की बात है, ये भी एक औरत है जिसको इतना कमाल है, रात दिन ये काम करती है और हम लोग को सामने करती है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो आज का दिन है ये बहुत ही बड़ा अजीम दिन है, ईद उल फितर। हमारे 2 ईदें होती हैं मैडम, एक होती है ईद उल दुहा और ईद उल फितर। आज ईद उल फितर है। इसका यह है कि हम पूरे 1 महीने रोजा रखते हैं, पूरा महीना। उसके बाद हमें गिफ्ट मिलता है आज का दिन, ईद का दिन। इसमें हम सब मिलते हैं, आपस में गले लगते हैं, नमाज पढ़ते हैं सवेरे सवेरे। ये हमारी 2 रकातें नमाज होती है, ईद की नमाज अलग। 1 महीना हम इसलिए रोजा रखते हैं, इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले हमारे आंखें भी रोजे रखते हैं, हमारी जबान रोजा रखती है, हमारा शरीर रोजा रखता है, कोई गलत बात इसमें नहीं होती है। और दूसरी बात, हम लोग जितने भी पुअर लोग हैं उनको हेल्प करते हैं। किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, किसी को हॉस्पिटल से लाना, किसी को खाने का कुछ हो, और रोज इसमें बड़े बड़े पकवान बनते हैं लोगों के लिए। किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए, जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी के घर में पहुंचाते हैं, तो दूसरे के उस घर वाले को भी पता नहीं लगना चाहिए हमने क्या दिया है, हमने कौन सा बैग इनके घर पे रखा है। उसमें सब कुछ होता है, खाना पीना, कपड़े, पैसा, सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। अल्लाह ताला ने ये मैसेज दी है रोजा रखने के लिए, तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका परविश किया है, तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने ये बताया कि लोगों के लिए क्या करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी सोशल वर्क है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बना रहे थे तो लोगों से बोला है मुझे काम दे दो, मैं क्या करूंगा। सारे साहिबों ने बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हम कौन सा काम दे सकते हैं, वो सवाल ही नहीं। तो बोला नहीं, मैं फिर भी ईंटें दे दूंगा। फिर वो उठा के ईंटें दे रहे थे,
मतलब ये काम है कि हर का काम कर। मस्जिद में सब लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मंदिर में सब लोग आते हैं पूजा करने के लिए। ये एक ही बात है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। हम बहुत इज्जत करते हैं इस चीजों की, क्योंकि हम खुद जाते हैं। हम गुरुद्वारे में, मैं 1 हफ्ता रही है अमृतसर में गुरुद्वारे में, क्योंकि ये सबसे अच्छी अजीम तरीन जगह है। तो ये बात है कि मुसलमान जो लोग हैं, जो रोजा रखते हैं, मन तन साफ रहता है, दूसरों की खिदमत करते हैं और सारी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। आप यकीन करेंगे, मैं कोई दवाई नहीं खाती, क्योंकि लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारा कुछ होता है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोगों को कुछ भी नहीं। क्यों? हम यकीन रखते हैं इस बात को, क्योंकि सुबह 2:30 बजे से शुरू 4 बजे तक जो खाना है, कितना खा सकता है इंसान? थोड़ा बहुत लेता है तो वह सारा पूरा दिन। और इबादत इबादत करते रहते हैं, हमारे कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। 30 पारे मैंने भी कंप्लीट किए हैं ईद से 2 दिन पहले। तो इसमें सभी अच्छाई है। हम मिलते हैं आपस में ईद के दिन, गले लगाते हैं आपस में। क्यों लगाते हैं मैडम? इसलिए क्योंकि प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। मस्जिद में जाते नमाज पढ़ते, मस्जिद में क्यों पढ़ते हैं 2 रकात? इसलिए क्योंकि हम लोगों का प्यार बढ़ जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि स्काउटिंग भी यही है। मैं स्टेट जॉइंट कमिश्नर स्टेट की हूँ, J&K स्टेट की, यूटी की हूँ। पर मैंने इतने सालों में, मैं बचपन से इस पे हूँ, मैंने भी इस पे भी यही बातें, लॉर्ड बर्टन पाउल ने भी यही कहा है, हमेशा खुश रहो, एक दूसरे के साथ दो, अपने मजहब पर डट के रहो, दूसरे मजहबों को इज्जत करो और दूसरे मजहबों को छेड़ो मत, अपने मजहब पर रहो। ये चीजें हम चला आ रहे हैं। छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों बुजुर्गों को सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे उस्ताद है, हमारे पड़ोसी है, हमारे दूसरे मुल्क। हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आप कहाँ से और मैं कहाँ से, कितना बीच में डिस्टेंस है मैडम। और दोनों सरों ने, और हीरो हमारा सर जो है, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है, उनसे पहले भी सर ने बहुत अच्छा बोला है। सच्ची आज बड़ी ठंडक पड़ी जिगर में, क्योंकि हम सब एक है, हम सब एक है, कोई दो नहीं हम है। जब अगर इंसान को, अगर मुझे भी एक सुई से कटाएंगे खून निकलेगा, और आपको भी एक ही है, दो नहीं है। इसलिए तनाव रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये ईद हमें यही सिखाती है, दिवाली हमें यही सिखाती है, होली हमें यही सिखाती है। पर हम लोग नहीं समझ रहे थे, अब क्या कर सकते हैं? ये बात तो है। मगर हमेशा अब ये बात है, हम लोग थोड़ा सा हम लोग क्या डक के होते हैं। क्यों? अब इसमें भी तनाव होता है, डक के क्यों रहना? नहीं, ये इसलिए क्योंकि सर अगर नंगा रहेगा तो जरासीम होते हैं सर में, बाल खराब हो जाते हैं, कोई चीज खराब हो, जिस्म खराब हो जाएगा, क्योंकि स्किन खराब हो जाता है। ढक के रहना बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि धूप ज्यादा तेज नहीं लगती है। और माशाल्लाह हमारा जो जम्मू कश्मीर है, खासकर कश्मीर, बहुत ही अच्छा है। आजकल हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम है और ठंड भी बहुत है। और आपके उधर फैन चल रहे हैं, AC चल रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं चल रहे अभी। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, ठंडी बहुत है। हम ये है, क्या नाम है, गर्मी में रहते हैं, आजकल भी रहते हैं, हीटिंग में रहते हैं। तो ये बात है कि ईद की बात है। आज हमारे को बहुत खुशी मिली, खासकर मुझे आज बहुत खुशी मिली। मेरे बच्चे आए हैं दुबई से, कल उन्होंने हमें सरप्राइज दिया है, वो आ गए उनके साथ अपनी ईद मनाई। और हमारा बेटा भी है, ये सर के, उदय सर के साथ ही, वो भी एक्टर है। तो मैं वही सोच रही हूँ, यहाँ से भी एक्टर और यहाँ से भी एक्टर ये बहुत अच्छी बड़ी बात है, बहुत अच्छी। हम मिल रहे हैं आपस में। अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, पूरे अपनी खुशी दे हम लोगों को, हमारे बाल बच्चों को, पूरी दुनिया को खुश रखे, हर चीज से खुश रखे हमें अल्लाह ताला, यहाँ भी और आखिरत में भी है। हमारी दुआएं यही है। और नम्रता मैडम को हमेशा अल्लाह ताला इज्जत दे, खुश रखे, इनके बच्चों को भी और इसको भी, और सबको खुश रखे। ये हमारी दुआएं हैं, आप सबके साथ है। और ईद, सबको ईद मुबारक है, और ईद सब मनाए अच्छी से। ये बहुत बड़ा त्योहार है, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, इसमें मिठाइयाँ खाते हैं,
अब क्या करूं मैं नम्रता मैडम जी, आप दूर है, नहीं तो मैं ये सब डब्बे आपके यहाँ भेज देती थी। अच्छा, वो आपने अच्छा बात बोल दी है, क्योंकि आपने जो बोल दिया वही हो गया। जी सर जी, नहीं हम तो एक है सर, हम तो एक है, दो नहीं एक है। मैं सर कैंप में होती हूँ तो वहां रोजा रखती, वहां भी मैं रोजा रखती हूँ। मैं पचमढ़ी जाती हूँ तो वहां भी रोजा रखती हूँ। मैं गदपुरी जाती हूँ, वहां भी रोजा रखती हूँ, जब नहीं, रोजे कोई के बात महीने नहीं, में जाते हैं। कोई बात ऐसा नहीं होता कि पास में होकर, जो दूर भी होकर हो नहीं नहीं सकता नहीं है, जो नहीं, होना चाहिए। कभी कुछ नहीं हुआ है सर। हमेशा हमें खाना मिला है सुबह 4 बजे। मैडम यही बोलते हैं, सलीमा मैडम बोलो कितने बजे चाहिए आपको। और नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे से खुशी। यही स्काउटिंग भी है, यही हिंदू मजहब, यही सिख मजहब, यही मुस्लिम मजहब भी है। एक बात, एक बात और कुछ नहीं सर। बाकी मैं थैंक यू करती हूँ आप सबका, इस खुशी के दिन में आप सब हमारे साथ है, बहुत ही अच्छा लगा है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद दे रही हूँ। खुश रहे और पूरा दुनिया खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। Thank you. नमस्कार। Thank you, madam. Thank you so सलाम। much. Now it's time to say goodbye to all of us because we have at the end of the program. Now I request Dr. Pramadini Sao ma'am, the head of the department Hindi from Imarti Devi Women's College. She will propose a vote of thanks. Over to Pramadini ma'am. Ma'am, please शुक्रिया, unmute yourself. शुक्रिया मैडम। Okay, ma'am. ईद के पावन दिवस पर 26 नेशनल वेबिनार पर आभासी पटल पर मौजूद सभी विद्वतजनों को ईद मुबारक और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि बॉलीवुड के फेमस एक्टर और सांसद मान्यवर श्रीमान मुन्ना खान महोदय जी, ओडिशा के स्कूल एंड मास एजुकेशन के स्टेट रिसोर्स पर्सन जो कि हमारे मुख्य वक्ता हैं, डॉक्टर मोहम्मद ओसामा जी, जम्मू और कश्मीर के स्काउट एंड गाइड के असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे विशेष अतिथि Joint Commissioner. Joint Commissioner. हाँ, जॉइंट कमिश्नर, हमारे विशेष अतिथि श्रीमती सलीमा परवीन जी, संयोजिका डॉक्टर नमिता पटनायक जी, रोवर रेंजर यूनिट के सभी सदस्य तथा प्रिय प्रतिभागियों, आप लोगों को इस ईद के महत्व के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। हमारे तीन अतिथियों ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है, और जो कि ईद का माने जैसे कि ईद जो कि सिर्फ हमारे इस्लाम धर्म का ही मुख्य त्योहार नहीं है, हमारे भारतवर्ष का हिंदू मुस्लिम सभी का एक माने महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इस वेबिनार की जो कि एक मुख्य अतिथि हैं, जो कि आकर्षण की केंद्र बिंदु हैं, जिसको कि हम बहुत ही बेचैन से, जो कि हमारे ही प्रिय एक्टर रहे हैं, हम बहुत ही माने उत्कंठा से माने उनसे सुनने के लिए बेचैन थे। और वो है हमारे, हम सब जानते हैं और मैडम भी उनके बारे में परिचय दे चुकी हैं, बॉलीवुड के जाने माने प्रसिद्ध अभिनेता और सांसद मान्यवर मुन्ना खान जी, जिनको हम मुन्ना भाई कहते हैं। ईद की पावन त्योहार पर उनको मुख्य अतिथि के पाकर हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। आज एक नहीं 3 विशेष व्यक्ति हमारे साथ हैं, फिर भी मुन्ना भाई जो कि हैं हमारे ओडिशा के गर्व और गौरव हैं, इसी ओडिशा के मिट्टी के सुपुत्र हैं। ओडिशा की एक आध्यात्मिक घटना को, जैसे कि सालवेग और रथ यात्रा को लेकर आधारित, जो कि जगन्नाथ के प्रति सालवेग की भक्ति पर प्रकाश डाला, ये बहुत ही सराहनीय है, हमारे लिए बड़ी बात है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के हर त्योहार पर कैसे जो कि एक मिलजुल कर भाईचारा जैसे कि निभाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। और हमें उन्होंने अपने जो कि अनमोल समय दिया, हमने सोचा भी नहीं था कि मुन्ना भाई हमको इतना समय देंगे और सभी की बात को सुनेंगे और उनसे भी बहुत कुछ जो कि हमको सुनने को मिलेगा। तो ये सब के लिए उन्होंने बहुमूल्य जो कि वक्तव्य दिया, मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ। ऐसे भी जितना भी उनको धन्यवाद दिया जाए कम है, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हमारे द्वितीय आकर्षण के केंद्र बिंदु है हमारे मुख्य वक्ता
उड़ीसा के स्कूल और मास एजुकेशन के स्टेट रिसोर्स पर्सन या डॉक्टर मोहम्मद उसामा जी, जो कि हमारे मुख्य वक्ता हैं, उनको पाकर हम धन्य हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ईद एक शांति, मैत्री और भाईचारा का दिन। ये वास्तव में सराहनीय बात है, जो कि उनका सही मैडम, ये सच है। हाँ, वो उनका कहना है, हर मानव जो यदि दीन दुखी को दान दें, मदद करें, संवेदनशीलता भाव प्रदर्शन करें, तो ईद का महत्व प्रतिपादित होगा। तो अपने ऊंचे और सुविचार से हमें उन्होंने मार्गदर्शन किया और रोग से, डिप्रेशन से कैसे हमको मुक्ति मिले उसका भी उपाय बताया, जो कि हमारे लिए आजकल के दिन में बहुत ही जरूरी है। सबको प्रेम बांटने के लिए भी उन्होंने संदेश दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैडम सो मच। हमारे जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारी महिला अतिथि, जो कि हमारे भारत, जो कि जिसको कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर, जो कि कश्मीर को, तो वहां से जो जुड़ी हैं और वहां के जो कि भारत स्काउट गाइड के असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि जॉइंट क्या असिस्टेंट कमिश्नर का जॉइंट कमिश्नर, स्टेट जॉइंट कमिश्नर गाइड, सॉरी, जॉइंट कोई कमिश्नर बात नहीं। श्रीमती सलीमा परवीन जी आज अवश्य हमारे विशेष अतिथि हैं। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, वो हमारे लिए बहु परिचित है। हमारे साथ जो कि हमारे हर एक वेबिनार में एक प्रतिभागी के रूप में हमें प्रेरणा, सहयोग देती भी रही हैं। तो कश्मीर तो हम जानते हैं कि कश्मीर का महत्व क्या है, झीलों के लिए या सुंदरता मैडम के लिए। वेलकम, आ जाइए कश्मीर, सारे पूरे हाँ, पार्टी आ जाइए। जाने की इच्छा तो होती है, और क्या करें, और क्यों इसलिए मैडम, भी क्यों? हाँ हाँ आ हाँ, जाइए, आ जाइए, शौक से आ जाइए। हमारे लिए तो बहुत ही खास है। अब दो ईद के बारे में, त्योहार के बारे में, ईद उल जुहा और ईद उल फितर। ईद उल दुहा और ईद उल फितर। हाँ हाँ, ईद उल जुहा उसके बारे में, दोनों त्योहार के बारे में आपने जो कि बताया, ये बहुत तो हमको जानना ही चाहिए। और इसके माध्यम से आपने भी ये बताया कि इंसानियत का धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में एकता का मंत्रदान भी हमें किया। तो ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सलीमा जी, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े थैंक यू रहिए। मैडम, थैंक यू मैडम सो मच। हाँ हाँ, आप जुड़े रहिए, ऐसे ही ज्ञान बांटती रहे और हमारा सहयोग देती रहे, हम आपसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं। और हमारे जो कि महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ की जो कि प्राचार्य हैं, और वेबिनार की सभापति डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र जी को भी मैं सत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उनके सहयोग का हाथ भी रहा है नमिता मैडम के पीछे, वो भी हमेशा सहायता प्रदान करती हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि नमिता मैडम तो पूरा वेबिनार का सारा श्रेय उनको ही जाता है। वे हर एक विशेष दिन पर वेबिनार का आयोजन कर सद्भावना, सुविचार, ज्ञान बांटती रहती हैं। अपने अथक परिश्रम से आज वो 96 वेबिनार, नेशनल वेबिनार तक पहुंच गई है। इस मुकाम पर वो पहुंच गई है हमारे उड़ीसा में। आप सोचिए, सारे उड़ीसा नहीं, हमारे भारत में अकेली एक महिला जो कि है, और किसी राज्य में मैंने नहीं देखा। मैं इतने सारे वेबिनार से जुड़ी रहती हूँ, किसी ने भी 96 तक वेबिनार, नेशनल वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार उन्होंने किया है, अभी तक मैंने किसी ने भी नहीं किया। ये तो हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है हमारे लिए। और वो फिर मैंने ये भी उम्मीद करती है कि कुछ ही दिनों में वो जैसे कि 100 की सेंचुरी मारेंगी। मैं तो सोचती हूँ ये कुछ ही दिनों में मार लेंगी, क्योंकि जो परिश्रम करता है उसको सफलता तो उसकी कदम चुमती है। तो ये जरूर मैंने पहुंचेगी, 100 तक पहुंचेगी, 100 से भी ज्यादा करेगी, चाहे तो 200 भी कर सकती है। और ये तो कोरोना ने हमको सिखा दिया ज्ञान बांटने का, जो कि आसान मार्ग, जिसमें कि ज्यादा पैसा ना खर्चा है करना पड़ता है, ना कि कहीं दूर की जर्नी करनी पड़ती है। इस आभासी पटल पर हम जोड़कर सब कुछ आपस में ज्ञान बांट सकते हैं, मिल सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों को भी
मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगी विभिन्न क्षेत्र से, जो कि बहुत खुशी से बहुत कुछ, जैसे कि हमारे उड़ीसा का जो कि वेबिनार है, उड़िया भाषा भी इसमें रहती है, और बाकी सब भाषा हिंदी में भी हम और इंग्लिश में भी उसको मिक्स जो कि करके हम वेबिनार को ये करना पड़ता है, तो सभी प्रतिभागी समझ सके। लेकिन ये जबकि ओडिशा है, कुछ तो ओडिया भी रहता ही है उसमें, तो लेकिन माफ कीजिएगा, तो हिंदी में भी हमको इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। और हिंदी में भी मैडम बोलती हैं कि नहीं हिंदी में आप बोलिए, नहीं तो मैं ओडिया में भी बोलती, लेकिन हिंदी में मुझे भी बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको उन तक भी पहुंचाना है सभी माने के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मुझे भी हिंदी में बोलना पड़ता है। और सभी प्रतिभागी जैसे कि माने हर बार हमारा साथ देते रहते हैं, तो विभिन्न माने प्रदेश से वो जुड़े रहते हैं, बहुत माने उत्कंठा से, उत्सुकता से वो जुड़े रहते हैं। और इसमें भी उनकी सफलता के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करती हूँ। ये सोनू जी तो मेरे साथ माने पूरा जुड़े हैं, माने हमारे हिंदी वेबिनार में भी जुड़े हैं सोनू जी, मैं देख रही हूँ सोनू जी को, और सोनू जी जुड़े हैं और जानती हूँ उनको, वो भी हमारे इस वेबिनार में बार माने आते हैं। और इसलिए मैं अंत में एक थोड़ी सी बात, मैंने जैसे कि सभी अतिथियों ने जो कुछ कहा, मैं एक शॉर्ट में उनके विशेष वक्तव्य का सार थोड़ा मैंने थोड़ा सुनाऊंगी। 1 मिनट लगेगा, शायद 2 मिनट लगेगा। नमिता मैडम इजाजत हो तो मैं थोड़ा प्लीज आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते वही मैंने उन्होंने जो कहा, थोड़ा सा मैं उसी के ऊपर मैंने प्रकाश डालना चाहूंगी। आप लोग जानते हैं हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी भाई भाई हैं, भाईचारा ही इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है। ईद लोगों में बेपनाह खुशियां बांटती है और आपसी मोहब्बत का पैगाम देती है। ईद का मतलब है एक ऐसी खुशी जो बार बार हमारे जीवन में आती है। वास्तव में देखा जाए तो ईद बुराइयों के विरुद्ध उठा एक प्रयत्न है, तो इसी से जिंदगी जीने का नया अंदाज मिलता है, औरों के दुख दर्द को बांटा जाता है, बिखरती मानवीय संवेदनाओं को जोड़ा जाता है। आनंद और उल्लास के इस सबसे मुखर त्योहार का महत्व उद्देश्य मानव को मानव से जोड़ना है और मानव कल्याण करना है। तो ईद का संदेश मानव कल्याण ही है, हमने जान लिया। और यही कारण है कि हाशिए पर खड़े, जैसे कि हमारे ओसामा जी ने भी कहा, वही दीन दुखियों के बारे में कहा, हमारे हाशिए पर खड़े दीन दुखी गरीब लाचार लोगों के दुख दर्द को यदि हम समझेंगे और अपने जो कि अपनी कोशिशों से उनके चेहरों पर मुस्कान लाए, तभी हमें ईद की वास्तविक खुशियां मिलेगी। ईद के अवसर पर मुझे इतना ही कहना है, और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद मुझे कहने के लिए मौका देने के लिए। Thank you, madam. Thank you very much. You are part and parcel of this webinar. So I never think that you are outsider. You are one of my best friend. Sure. आज का ये दिन में आपका धन्यवाद सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि ना ये तो धन्यवाद तो सब देते हैं, लेकिन धन्यवाद के साथ अब जो सब्जेक्ट के बारे में दूसरे जो छोड़ दिया गया था वो लाइन को आप दोहरा लिया, इसलिए बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। और मैं मेरा प्राण प्रिय जगन्नाथ जी के पास दुआ रखती हूँ, सबको अच्छा से रखे और आमीन, सब आमीन, कम्युनिटी बहुत बहुत सुंदर से अच्छे से जीवन बिताए, यही है हमारा मूल लक्ष्य है। और फिर हम लोग 97 में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जरूर जरूर सभी मिलेंगे। हमारे प्रतिभागी हमारा साथ